A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. Again I am here with the another video of the class 12 economics of basically the macroeconomics. So you know very well that we have completed whole syllabus of the economics, in which we have already discussed the whole chapters of the macroeconomics, as well as we have also studied the chapters of the Indian economic development. Okay, so from the previous few classes we were continuously revise the all the chapters, basically because students are facing the problems related to the numerical question and the some concept like income determination and the multiplier, as well as foreign exchange rate, where the rate will be the determined, what will be the balance of payment, so what is capital account, current account. So all these we have already discussed in the previous class. Okay, so in the last class we have completed the chapter that is income determination and the multiplier. Okay, so in today's class we are going to start the new chapter of macroeconomics, that is excess demand and the deficient demand. Okay, so last class in the chapter income determination and the multiplier we have discussed the determination of the equilibrium by aggregate demand and aggregate supply approach. Next we have discussed determination of the equilibrium by the saving and investment approach. Next topic that we have discussed, that is equilibrium level of employment, in which we have studied that it is divided into three, that is full employment level, over full employment level and the underemployment level. Okay, so after that we have discussed the topic that is investment multiplier. So what is the investment multiplier? We have also studied the relation between the multiplier and the MPC, relation of the multiplier and the MPS. Next topic that we have started, that is for working of the multiplier. So working of the multiplier is divided into two, that is forward working of multiplier and the backward working of multiplier. We have already discussed the working of the multiplier, how the investment, how the income works in an economy, how the multiplier works in an economy. We have discussed the forward working of multiplier with the help of diagram, as well as we have also discussed the backward working of the multiplier with the help of diagram. Okay, so after that the last topic of this chapter we have discussed, that is characteristics of the multiplier. Okay, so all these things we have already discussed in the previous classes. In today's class we are going to start with the new chapter of your macroeconomics, that is excess demand and the deficient demand. Okay, so let's get started. So in this chapter we are going to study some topics like the meaning of the excess demand or the inflationary gap. Okay, excess demand is also called the inflationary gap. Causes of the excess demand, impact of the excess demand. Next topic, that is meaning of the deficient demand. Deficient demand is also called the deflationary gap. So causes of the deficient demand and what are the impact of the deficient demand. Next topic that we will study, that is fiscal measures to control the excess demand and the deficient demand. Fiscal policy, meaning and its different instruments, and the monetary policy, meaning and its different instrument. Okay, so all these topics that we are going to study in this chapter. Okay, so firstly we will start with the introduction of this chapter. So it is given here that in the previous chapter we have studied that equilibrium level of income and output is determined by the equality between the aggregate demand and the aggregate supply, और दी इक्वालिटी बिटवीन दी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सो ये लास्ट चैप्टर में हमने ये डिस्कस कर लिया है कि अगर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होना है तो वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, ये हमने भी देखा था, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी वहां पे क्या होता है, ये दोनों जब एक दूसरे के इक्वल होंगे, दैट सिचुएशन इज
called the equilibrium situation. As well as we also discuss with the saving and investment कि जहाँ पे सेविंग क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा, वो सिचुएशन भी क्या होगी, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी, दैट इज सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया लास्ट क्लास में. नेक्स्ट हम क्या कर देखते हैं, Keynesian theory believes that equilibrium level of income may correspond to full employment, underemployment or the over full employment of resources. ठीक है, Keynesian जो theory है वो ये बिलीव करती है कि अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है तो वो कहाँ पे होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट की भी सिचुएशन पे होता है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट की भी सिचुएशन पे होता है और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे होता है. ये सारा हमने चैप्टर इनकम डिटर्मिनेशन ऑन द मल्टीप्लायर में हमने देख लिया है. सो अकॉर्डिंगली देयर वुड बी सिचुएशन ऑफ द एक्सेस डिमांड एंड द डेफिशिएंट डिमांड. अब उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की भी कंडीशन हो जाती है और डेफिशिएंट डिमांड की भी कंडीशन हो जाती है. एक्सेस डिमांड की सिचुएशन और कंडीशन हो गई जब डिमांड क्या हो गया है, एक्सेस हो गया है एज कंपेरिजन टू द सप्लाई, when AD is more than the aggregate supply. And the situation of deficient demand, deficient मतलब lack, कम होना, मतलब कि अब डिमांड क्या हो गया सेकेंड कंडीशन पे, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई. अभी सप्लाई क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है और डिमांड क्या हो गई है, वो कम हो गई है. ठीक है, सो व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट एट द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है, अगर जो इकोनॉमी है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे नहीं होती है, उस केस में इकोनॉमी में दो सिचुएशन हो जाती है, या तो एक्सेस डिमांड की हो जाएगी, या तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, या तो डिमांड कम हो जाएगा. ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड, डिमांड ज़्यादा होना दैट इज एक्सेस डिमांड, डिमांड कम होना दैट मीन्स डेफिशिएंट डिमांड. सो वी विल in this chapter we will study about the excess demand and the deficient demand. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड. ठीक है, तो हम फर्स्टली स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ द एक्सेस डिमांड और द इन्फ्लेशनरी गैप. मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड एंड और इन्फ्लेशनरी गैप. ठीक है, एक्सेस डिमांड को इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं. ओके, सो एक्सेस, द मीनिंग ऑफ द एक्सेस डिमांड और द इन्फ्लेशनरी गैप इज, सो एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन. एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन को रेफर करता है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इन एक्सेस ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment in the economy. मतलब कि जब ये सिचुएशन, जब AD क्या हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन दी एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment in the economy. मतलब इकोनॉमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे जब क्या हो जा रहा है, एजी क्या हो जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जा रहा है, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जा रहा है. सो व्हेन एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द रिक्वायर्ड और द प्लान्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. ये हमने लास्ट में चैप्टर इनकम डिटर्मिनेशन में पढ़ा था, जब एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन पढ़े थे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां पे क्या हो रहा था, जो एक्चुअल एडी है, एक्चुअल एडी जो है, जो रियलिटी में है, इट बिकम्स मोर देन द रिक्वायर्ड और द प्लान्ड एडी. वो क्या है, रिक्वायर्ड और प्लान्ड एडी से ज्यादा हो गई है. सो ये सिचुएशन जब एक्चुअल एडी बिकम्स मोर देन द रिक्वायर्ड एडी, एक्चुअल एडी क्या हो गई है, रिक्वायर्ड और प्लान्ड एडी से ज्यादा हो गई है, टू मेंटेन दी फुल एम्प्लॉयमेंट. टू मेंटेन दी, कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने में, देखिए जब भी एक्सेस डिमांड होगा या एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड होगा तो हम लोग वहाँ पे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन फाइंड आउट करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड कर्व एडी कर्व एएस को इंटरसेक्ट कर रहा है. बट वो सिचुएशन क्या हो जाएगी कि एक्चुअल में जो एडी हो रहा है वो ज्यादा हो जा रहा है एज कंपेरिजन टू जो हमने
प्लान किया है, ठीक है। टू मेंटेन मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने की कंडीशन पे क्या हो जा रहा है कि एक्चुअल हमें फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन लाना है, उस सिचुएशन को हमको मेंटेन करने में क्या हो जा रहा है कि एक्चुअल एडी ज़्यादा हो जा रहा है और रिक्वायर्ड एडी कम हो जा रहा है। तो ये क्या होता है, एक्सेस डिमांड और द इन्फ्लेशनरी गैप। अगर आपके क्वेश्चंस आता है कि व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी डेफिनेशन आपको बताना पड़ेगा कि एडी एएस से ज़्यादा हो जाता है करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, और एक्चुअल एडी बिकम्स मोर देन द रिक्वायर्ड और द प्लान्ड एडी टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर इसके बाद आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके पूछ लेता है कॉजेज और द इम्पैक्ट, ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अगर कॉजेज और इम्पैक्ट पूछता है तो आपको बता दीजिए कि कॉजेज क्या है कि जो एक्सेस डिमांड हो रहा है, एंड द इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा। नहीं तो आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर उसके ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपने उस डायग्राम को देख के ऑब्जर्व किया, यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, इसका पहले डायग्राम देखते हैं और फिर इसका ऑब्जर्वेशन को भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मीनिंग तो समझ में आई गई होगी कि क्या एक्चुअल एडी जब क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड एडी से ज़्यादा हो जाता है टू मेंटेन दी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, वो सिचुएशन क्या हो जाती है, एक्सेस डिमांड की हो जाती है, ठीक है। सो वी विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब हम इसको क्या करेंगे, डायग्राम की हेल्प से। ये पता है एग्रीगेट सप्लाई होती है जो क्या होती है 45 डिग्री होती है। नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, एडी। सो दिस विल बी AD0। अब यहाँ पे हमने देखा क्या बोल रहा था कि व्हेन एडी क्या हो जाती है, पहले हमारी AD0 थी, अब एडी हमारा जो डिमांड है कमोडिटी का वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगा तो कर्व क्या होगा, वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जो चीज चेंजेस हम देख रहे हैं उसको क्या किया करिए आप लोग, शेडेड लाइन से शो किया करिए। उससे क्या होगा कि जो भी डिफरेंस हो रहा है दोनों में वी कैन इजिली आइडेंटिफाई। तो ये सिचुएशन आपकी क्या हो गई, M। यहाँ पे हम लेते हैं इनकम, आउटपुट and employment. Here we will take AD oblique AS. यहाँ पे हमने देखा एट पॉइंट E इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। ये आपका क्या हो गया, C प्लस I, ये है आपका AD1। यहाँ पे AD0 ले लिया और ये क्या है, AD1 है। ये वाला AD1 क्या है, एक्चुअल AD है, मतलब एक्चुअल में ये हो रहा है और हमें रिक्वायर्ड कितना है, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, दैट इज E1। इसको भी लाइन से बना देते हैं, M1, राइट। अब जो डिफरेंस बेसिकली हो रहा है, ये डिफरेंस, ये जो रिक्वायर्ड एडी और एक्चुअल एडी का जो ये डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं बताइए, एक्सेस डिमांड बोलते हैं, ठीक है। यही जो डिफरेंस हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सेस डिमांड। इसको भी हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज F। और ये सिचुएशन क्या हो गई, एक्सेस डिमांड की हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि एक्चुअल जो डिमांड है, एक्चुअल एडी बिकम्स मोर देन द रिक्वायर्ड एडी, क्योंकि कर्व हमारा क्या हो गया है, एडी कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया है, मतलब एक्चुअल एडी क्या हो गया, वो रिक्वायर्ड एडी से ज्यादा हो गया है। और जो ये गैप बच जा रहा है, ये गैप जो है इन दोनों के बीच का, वही होता है एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप का, राइट। यही सिचुएशन क्या हो जाता है कि इन्फ्लेशनरी गैप का हो जाता है, ओके। अब क्या बात होती है कि हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल एडी की वैल्यू कितनी है। अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट के साथ देखते हैं, ये है FM, एक्चुअल एडी
minus required AD. Actual AD minus required AD, which is equal to the excess demand. Excess demand, ठीक है. एक्चुअल एडी और रिक्वायर्ड एडी को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, जो भी चेंजेस आया है, वही आपका क्या हो जाता है, एक्सेस डिमांड. एक्चुअल एडी देखिए कितनी है आपकी, एफ एम. एफ पॉइंट हमने दे दिया और एम दे दिया, एफ एम. रिक्वायर्ड एडी कितनी है, हमें चाहिए कितनी, ई एम चाहिए, इतनी चाहिए. और अगर हम इनको माइनस करेंगे, एफ एम माइनस ई एम, बचा हमारे पास क्या, ये एफ ई. ये एफ ई क्या हो जा रहा है आपका, एक्सेस डिमांड हो जा रहा है. मतलब कि डिमांड हमारी इकोनॉमी में गुड्स की ज्यादा हो जा रही है एज कंपेरिजन टू दी सप्लाई ऑफ दी दोज कमोडिटी. जो सप्लाई होनी है गुड्स की, वो क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, और डिमांड क्या हो जा रही है, वो ज्यादा हो जा रही है. ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया. इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. और ये जो सिचुएशन हो गई आपकी, ये MM1 से, ये सिचुएशन आपकी ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट की. ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट की मतलब एम्प्लॉयमेंट हमें बस पॉइंट M तक चाहिए था, बट एम्प्लॉयमेंट कहाँ तक हो गया, M1 तक हो गया है. यही क्या हो गया, सिचुएशन ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट हो गया. जितना रिक्वायरमेंट थी, जितना लोग विलिंग थे पर्सन काम करने को, एबल भी थे एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, अब उससे ज़्यादा लोग क्या करने लगे हैं, काम करने लगे. तो जब ज़्यादा लोग काम करेंगे तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी. इनकम बढ़ेगी तो उनके पास एक्सपेंडिचर भी उनका बढ़ेगा. एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब है कि वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं. तभी ये कंडीशन क्या हो जा रही है कि डिमांड क्या है, वो सप्लाई से ज़्यादा हो जा रहा है. ठीक है. सो इन द डायग्राम एट पॉइंट ई, दिस पॉइंट ए, here we see that AD equal to AS. यहाँ पे क्या है, AD curve AS intersect कर at point E, so there is a full employment in the economy. इकोनॉमी में क्या है, full employment है. at point M पे हम देख रहे हैं full employment है इकोनॉमी में. if aggregate demand rises to AD1, अगर aggregate demand AD0 से AD1 पे rise कर रही है, then there is excess demand in the economy as AD is greater than AS. तब इकोनॉमी में क्या हो जाएगा कि इकोनॉमी में बेसिकली कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्सेस डिमांड की हो जाएगी, क्योंकि डिमांड बिकम्स मोर देन दी एग्रीगेट सप्लाई. डिमांड अब क्या हो जा रही है, यहाँ से देखिए, यहाँ डिमांड ज़्यादा हो जा रही है, सप्लाई कम हो जा रही है. सो द डिफरेंस बिटवीन AD1 एंड द AD0, जो डिफरेंस है AD1 और AD0 का, ये जो डिफरेंस है, इतना डिफरेंस क्या हो जा रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड हो जा रहा है. सो दिस पॉइंट इज एक्चुअल एडी है हमारा इतना, एक्चुअल में एडी इतना ज़्यादा हो गया और हमें रिक्वायर्ड है बस यहीं तक की. तो अब जो दोनों का डिफरेंस हो गया, एक्चुअल एडी माइनस रिक्वायर्ड एडी इज इक्वल टू एक्सेस डिमांड. सो FM पॉइंट जो एक्चुअल एडी है एंड रिक्वायर्ड एडी है हमें EM, तो जितना डिफरेंस हुआ दैट इज FE, वो क्या हो गया है, एक्सेस डिमांड हो गया है. सो पॉइंट E इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. ई पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम का है, जहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है. फुल एम्प्लॉयमेंट है रिसोर्सेज का. पॉइंट ई इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ऐसा नहीं है कि पॉइंट E1 को हम इक्विलिब्रियम का नहीं कहेंगे. इक्विलिब्रियम तो वही सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे AD का AS को इंटरसेक्ट करेगा, बट इट इज करस्पॉन्डिंग टू दी overfull employment of the resources or basically the corresponding to the overfull employment of the resources. यहाँ पे हम लोग overfull employment मतलब अगर हम बात करते हैं कि ये हम नहीं बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं है, ये भी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, क्योंकि AD कर्व AS को इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रहा है, बट ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उनका ओवरफुल एम्प्लॉयड हो जा रहे हैं. ठीक है, तो ये सिचुएशन क्या हो जाती है, एक्सेस डिमांड की हो जाती है. सो इन फिगर AD0 is the desired or the aggregate AD corresponding to full employment level of resources, and AD1 is actual AD beyond the full employment level of resources. ठीक है, जहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पहले इक्विलिब्रियम लेवल क्या था, OM था, अब इक्विलिब्रियम लेवल क्या हो गया है, OM1 हो गया है. सो इम्प्लाइंग दैट द ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अब जो रिसोर्सेज हैं
उनका ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, वो किसके इक्वल है, MM1 के। ये पॉइंट इतना क्या है, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज का ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है, ठीक है। सो अब इसका क्या देखते हैं, कॉजेज ऑफ द एक्सेस डिमांड, कि इकॉनमी में अगर ये सिचुएशन आ रही है, वो सिचुएशन किस में आ रही है, मतलब अगर हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेस डिमांड ज्यादा हो रहा है तो उसके कॉजेज क्या हैं, ठीक है। आपको समझ में आया, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप आप बताओगे, फिर उसके बाद आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम के बाद इसका ऑब्जर्वेशन लिखना पड़ेगा। अगर ये आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का 6 मार्क्स का है तो आपको उसके कॉजेज भी बताने पड़ेंगे कि क्या, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज, एज वेल एज उसका आपका कि इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा, ठीक है। तो पहला कॉज है कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कि जो भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो रही है तो उससे क्या है, डिमांड जब लोग ज़्यादा कर रहे हैं तो डिमांड ज़्यादा क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि लोगों की इनकम का जनरेशन ज़्यादा हो रहा होगा। इनकम जनरेट ज़्यादा होने का मतलब है कि लोगों की डिमांड भी ज़्यादा हो रही होगी, लोग इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं कि इकॉनमी में, तो मनी सप्लाई भी ज़्यादा हो गई है। तो अगर इकॉनमी में सिचुएशन हो जा रही है एक्सेस डिमांड की, सो देयर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द मोर मनी सप्लाई इन द इकॉनमी में ज़्यादा क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई हो जाएगा, जिसका सबसे पहला कॉज है कि इंक्रीज इन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सबसे पहला फर्स्ट कॉज है इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि जो कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है। कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या है कि वो कंजप्शन ज्यादा कर गया है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये कौन करेगा, फर्म करेंगी और दी प्रोड्यूसर सेक्टर्स करेंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर। थर्ड क्या होगा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये कौन करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर करेगी, राइट। एंड द लास्ट वन इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन दी एक्सपोर्ट, ये क्या हो जाएगा कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसमें एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, मतलब बेसिकली हो गया कि एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, हम गुड्स को बाहर भेज रहे हैं, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो जनरेशन है इनकम का, फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में ज़्यादा आ रही है, लोगों की जब इनकम ज़्यादा हो रही है, पैसा ज़्यादा हो रहा है, तो डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। सो द कंडीशन ऑफ द एक्सेस डिमांड, सो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। ये कौन करेगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विच इज शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ROW, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो दीज ऑल आर द कॉजेज फॉर द एक्सेस डिमांड, ठीक है। ये सारे क्या है, पूरे कॉजेज है एक्सेस डिमांड के। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि फर्स्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है। इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर की जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहा है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो प्रोड्यूसर सेक्टर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे भी मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं दैट मीन्स की इनकम जनरेशन भी ज़्यादा ही हो रही होगी। थर्ड वन इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर पे इंक्रीज कर रही है, जैसे बहुत सारे ब्रिजेस, डैम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारे कंस्ट्रक्शन करा रही है। अब ये सब कंस्ट्रक्शन कराएगी तो मोर लेबर रिक्वायर्ड, अगर लेबर रिक्वायर्ड होंगे, अगर लेबर काम करेंगे तो अल्टीमेटली उनको इनकम मिलेगी, इनकम जनरेशन होगा तो वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। तो ये सब की वजह क्या हो जा रही है, एक्सेस डिमांड हो जा रहा है। एंड द लास्ट वन इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जा रहा है तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में क्या सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इम्पैक्ट ऑफ द एक्सेस डिमांड,
कि इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट इकोनॉमी में अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमी में इम्पैक्ट एक्सेस डिमांड का क्या हो रहा है, मतलब ये बेसिकली पूरा क्या क्या कैसे कैसे डिफरेंट चेंजेस इकोनॉमी में ला रही है। तो पहला है इसमें इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड इज एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। इम्पैक्ट ऑन employment, right? So as there is full utilization of the resources available in the economy, that there is full employment, ठीक है। जितने भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन हो चुका है, इसीलिए इकोनॉमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। हेंस एक्सेस डिमांड डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो चुकी है, अब क्या करेगा, ये और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं करेगा। तो इसमें बेसिकली क्या हो गया, नो चेंज, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा कि कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सेकेंड वन इज इम्पैक्ट ऑन आउटपुट। इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सो सिंस द रिसोर्सेज हैव ऑलरेडी बीन यूटिलाइज्ड टू द फुल, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो क्या है, पूरा ऑलरेडी पूरा फुलर यूटिलाइजेशन हो चुका है। देन एक्सेस डिमांड डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन दी आउटपुट, कि इसमें भी क्या है कि कोई आउटपुट में इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि सारे जब कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी तो आउटपुट का प्रोडक्शन भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इम्पैक्ट ऑन प्राइस। इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस, प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। सो एज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट चेंज, अगर आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सो अल्टीमेट प्रेशर इज ऑन प्राइस। अल्टीमेटली प्रेशर किस पे आ जाएगा, प्राइस पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई है, सप्लाई हो ही नहीं रही है, एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं रहा है, आउटपुट प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली जो भी डिमांड, जो भी गुड्स अवेलेबल हैं इकोनॉमी में, उनकी प्राइस को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज कर दिया जाएगा तो जो डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही थी वो डिमांड नहीं हो पाएगी, इसलिए पूरा प्रेशर किस पे आ जाता है, प्राइस पे आ जाता है। और जब प्राइस पे पूरा प्रेशर आएगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज इन प्राइसेस। प्राइसेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी, एंड दिस लीड्स टू दी इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जनरल प्राइस लेवल क्या है कि हर चीज की क्या है, प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाता है। और प्राइस लेवल क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, पूरा प्रेशर किस पे है, प्राइस पे है, और इसलिए इंक्रीज प्राइस हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, एंड इट लीड्स टू दी इन्फ्लेशन। इसीलिए ये जो सिचुएशन है एक्सेस डिमांड है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप बोलने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो भी गैप आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा एक, अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा आपका टॉपिक हो गया या पूरा कंसेप्ट हो गया जिसमें हमने क्या क्या डील किया। हमने सबसे पहले देखा कि व्हाट इज एक्सेस डिमांड एंड व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है कि जब व्हेन एडी इज बिकम मोर देन दी aggregate supply AS corresponding to the full employment level of the resources, or when actual AD becomes more than the required AD to maintain the full employment of the resources. This situation is called the excess demand. Okay. Next, what we have discussed, we have make a diagram related to the excess demand. हमने diagram बनाया जिसमें हमने इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और ADAS लिया, जहाँ पे आपका ये रिक्वायर्ड AD था और AD क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सो कर्व हमारा AD0 से AD1 हुआ। पहले इकोनॉमी क्या थी, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे थी, एट पॉइंट E OM लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था, बट जैसे ही एक्चुअल AD ज़्यादा हो गया तो न्यू इक्विलिब्रियम क्या है, E1 पे बन गया।
और एक्चुअल एडी जो था माइनस रिक्वायर्ड एडी, जितना गैप हो गया वो हमारा एक्सेस डिमांड हो गया, दिस सिचुएशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज। सो डिफरेंट कॉजेज इज इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव डिस्कस, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, आउटपुट में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है तो कोई आउटपुट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर जब इन दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो पूरा प्रेशर किस पे आ जा रहा है, प्राइस पे आ रहा है। प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा सो देयर इज प्रॉब्लम ऑफ द इन्फ्लेशन अकर्स। सो दिस इज द ऑल योर एक्सेस डिमांड और द इन्फ्लेशनरी